Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So guys, as we were discussing about president. Under president, we discussed about the election procedure related with Indian president, the different articles related with the post of president, his election, qualification, along with that the different kind of things related with his tenure, the conditions for the post of president, and along with that we also discuss about the procedure related with the removal of president. यानी यहाँ सारे टॉपिक्स हैं जो हमने ऑलरेडी इस प्रेसिडेंट टॉपिक के अंडर डिस्कस किए. आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द पावर्स ऑफ president. So guys, the powers of president are divided in two parts, the general powers and the emergency powers. About the general powers, for example, the legislative power, the executive power, the judicial power, and along with that the financial power we have already discussed. Okay, इनके बारे में complete discussion already हो चुका है. After that, the next type of power is the emergency power. So guys, a country is just like a family, and as in front of a family, we notice different kind of problems. In the same manner, different kind of emergency situations and problems also come in front of a nation. So in this way, our constitution made provisions for these emergency situations, and these emergencies are generally divided in three parts according to Indian constitution, which are the national emergency, the state emergency, and the financial emergency. Okay. Actually, constitution कहीं भी यूज नहीं किया गया है. There is no existence of this word emergency in the Indian Constitution. ये word सिर्फ एक ही जगह मिलता है in the 44th Constitutional Amendment Act of 1978, जिसमें ये word emergency यूज़ किया गया. इसके अलावा कहीं भी emergency word यूज़ नहीं किया गया. But for general understanding, we are using this word national emergency. Okay, so the national emergency, state emergency, and the financial emergency. Okay, so guys, these three emergencies are related with three major articles. Article 352 related with the national emergency, Article 356 related with the state emergency, and along with that Article 360 is related with the financial emergency. Okay, यानी three type of emergency जो three अलग अलग articles में mentioned है. नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल जो है, यानी राष्ट्रीय संकटकालीन जो स्थिति है, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन आर्टिकल 352 में मिलता है. स्टेट इमरजेंसी जो है, राज्य स्तरीय आपातकाल जो है, उसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है वो आर्टिकल 356 में है. और फाइनेंशियल या वित्तीय आपातकाल जो उसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 360 में मैंशनड है. इसके अलावा आर्टिकल 356 के जैसे ही कुछ प्रोविज़न आर्टिकल 365 में भी मिलते हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे. तो इन दिस वे आवर फर्स्ट पॉइंट इज द नेशनल इमरजेंसी यानी राष्ट्रीय आपातकाल. ओके, सो गाइज, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल इमरजेंसी, और वी कैन से दैट द emergency like situation at the national level or at a particular part of a country. Okay, this is what we call national emergency, which is mentioned in article 352 of the Indian Constitution. Now the first question is, what do we actually mean by national emergency? यानी हमारे अकॉर्डिंग national emergency होती क्या है? So guys, national emergency means a kind of emergency which is implemented by the president in the situation of war, external invasion, along with that internal
रिवोल्ट्स। यानी हमारा जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 352 में क्लियरली मेंशन किया गया था कि यदि सिचुएशन होती है वॉर, यानी वॉर लाइक सिचुएशन, एक्सटर्नल इन्वेजन यानी बाहरी आक्रमण, एंड अलॉन्ग विद दैट द सिचुएशन ऑफ इंटरनल रिवोल्ट यानी आंतरिक अशांति, ऐसी कोई भी सिचुएशन क्रिएट होती है, देन इन सच अ सिचुएशन प्रेसिडेंट इज हैविंग अ पावर टू इम्प्लीमेंट द इमरजेंसी। ओके, यानी प्रेसिडेंट के सामने जब ऐसी सिचुएशंस आती है या प्रेसिडेंट को कुछ ऐसी कोई भी सिचुएशन फील होती है, देन ही कैन इम्प्लीमेंट दी नेशनल इमरजेंसी ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 352। यानी आर्टिकल 352 के प्रोविजंस में मैंशनड आर्टिकल 352 में मैंशन प्रोविजंस के अकॉर्डिंग यदि एक्सटर्नल वॉर, एक्सटर्नल इन्वेजन वॉर और इंटरनल रिवोल्ट लाइक सिचुएशंस क्रिएट होती है या फिर प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है, तो प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर सकता है, विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द होल कंट्री और इन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द नेशन। यानी कंट्री के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में, पर्टिकुलर साइड में, पर्टिकुलर डायरेक्शन में या फिर पूरे नेशन में नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हो सकती है। दिस काइंड ऑफ इमरजेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंटेड इन 1962 in the situation of Indo-China War. Then in 1971 in the situation of Indo-Pak War. Okay, along with that it was also implemented in 1975. In 1975 on the name of internal revolt by the Indira Gandhi government. Okay, यानी मेजर 3 नेशनल लेवल इमरजेंसी हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हुई हैं। यानी जिस एमरजेंसी का डिस्कशन आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, दिस काइंड ऑफ एमरजेंसी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इम्प्लीमेंटेड इन 1962 और ये कब हुआ था? एट द टाइम ऑफ इंडो चाइना वॉर। ओके, जब इंडिया और चाइना में वॉर हुआ था एट दैट टाइम। इसके अलावा ये एमरजेंसी इंडो पाक वॉर जो 1971 में हुआ था उस टाइम भी इम्प्लीमेंट हुई थी। सो दिस टाइम दिस एमरजेंसी वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यू टू वॉर, तो ये वॉर की वजह से था एंड दिस एमरजेंसी वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन द नेम ऑफ इंटरनल रिवोल्ट या फिर हिंदी में कह सकते हैं आंतरिक अशांति। इज दैट क्लियर? ओके, सो गाइज आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एमरजेंसी इन 1975 in 1978 44th Constitutional Amendment Act took place. Okay, तो 44th Constitutional Amendment Act by the जनता गवर्नमेंट, उस टाइम की जो जनता दल गवर्नमेंट थी उसने 44th Constitutional Amendment Act लिया था 1978 में। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस Constitutional Amendment Act some provisions were included in Article 352 and in this way the implementation of emergency under Article 352 was made little bit complicated। यानी अब इस सिचुएशन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया गया और उसमें कुछ चेंजेस किए गए। सो विच वर दीज चेंजेस वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग जो नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट होती है वो सबसे पहले 1962, उसके बाद 1971 और फिर 1975 में इम्प्लीमेंट हुई थी। लेकिन 1975 में जो इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुई थी इंटरनल रिवोल्ट के बेसिस पे, उसमें काफ़ी हद तक इमरजेंसी की इस पावर का मिसयूज़ हुआ था एंड दैट्स वाई 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उसमें बहुत से चेंजेस किए गए ताकि इसका मिसयूज़ रोका जा सके। अब ये चेंजेस कौन कौन से थे, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। यानी यदि एट प्रेजेंट नेशनल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करनी हो तो प्रेसिडेंट को कौन कौन सी पॉइंट्स जो है वो अपने माइंड में रखने होंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर। ओके, सो गाइज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अकॉर्डिंग जो प्रोविजंस ऐड किए गए उसमें सबसे फर्स्ट प्रोविजन ये था दैट नाउ emergency could not be implemented only on the name of internal revolt. Okay, only on the name of internal revolt. यानी emergency सिर्फ internal revolt या आंतरिक अशांति के नाम पे इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती
इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन द सिचुएशन ऑफ आर्म्ड रिवॉल्ट। यानी 1978 के 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में ये नया प्रोविजन ऐड कर दिया गया दैट द प्रेसिडेंट कुड implement emergency only in the situation of armed revolt. It cannot be implemented in the situation of or in the name of internal revolt. यानी internal revolt या आंतरिक अशांति के नाम पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन थी and that was armed revolt along with war and external invasion। यानी इंटरनल रिवोल्ट को हटा करके उसकी जगह आर्म्ड रिवोल्ट जोड़ दिया गया। ओके, ये इसका फर्स्ट प्रोविजन था। नाउ द सेकंड प्रोविजन। सो गाइज द सेकंड प्रोविजन which was included under the 44th Constitution Amendment Act was to implement the emergency the president have to take the written consent of the cabinet, okay, not only the prime minister। यानी इमरजेंसी इंप्लीमेंट करने के लिए सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट का रिटन कंसेंट मिलना जरूरी होता है। इज दैट क्लियर? मीन्स प्रेसिडेंट कैन इंप्लीमेंट इमरजेंसी ओनली आफ्टर गेटिंग द कंसेंट ऑफ द कैबिनेट इन रिटन। यानी यदि लिखित में कैबिनेट, पूरी कैबिनेट की जो मिनिस्टर्स हैं वो यदि लिख करके देते हैं प्रेसिडेंट को कि इमरजेंसी इंप्लीमेंट की जानी चाहिए, ओनली देन प्रेसिडेंट कैन इंप्लीमेंट द इमरजेंसी। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर या लिखित में देने पर ऐसा नहीं किया जा सकता। इज दैट क्लियर? नाउ आफ्टर दैट द थर्ड प्रोविजन। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इमरजेंसी विद इन 1 month द प्रेसिडेंट हैव टू टेक द consent of both the houses of parliament or the consent of parliament within 1 month, and after this consent this emergency could be it can be implemented for 6 months, and after 6 months to extend it, it is compulsory to टेक द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंट अगैन। ओके, तो इसमें थर्ड प्रोविज़न ऐड किया गया कि ऐसी एमरजेंसी जो 352 के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट होती है, इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद प्रेसिडेंट को विद इन 1 month पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से सेपरेटली 2/3 मेजोरिटी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस प्रेजेंट इन द मीटिंग और मेजोरिटी ऑफ total number of members in the parliament or in the particular house। यानी पर्टिकुलर हाउस में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उनके बहुमत से, उनकी मेजोरिटी से, या फिर जो मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी से इस इमरजेंसी को 1 month के अंदर कंसेंट लेकर 6 month तक इंक्रीज किया जा सकता है। और आफ्टर 6 month द प्रेसिडेंट हैव टू टेक द कंसेंट अगैन। 6 month के बाद इसको बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का कंसेंट एक बार फिर से लेना पड़ेगा। दैट वाज द थर्ड प्रोविजन इंक्लूडेड अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट। एज द नेक्स्ट प्रोविजन इट इज said that the emergency can be dissolved by or it can be removed by Lok Sabha by passing a motion with simple majority। ओके, यानी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस की 2/3 मेजोरिटी का कंसेंट लेना जरूरी है, लेकिन इसको हटाने के लिए लोकसभा का सिंपल मेजोरिटी से पास किया गया बिल इनफ होता है। यानी इसमें 4th प्रोविज़न ऐड किया गया कि इस इमरजेंसी को लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से मोशन पास करके रिमूव कर सकती है। इज दैट क्लियर? अलॉन्ग विद दैट एज द 4th प्रोविज़न इट वाज आल्सो सेड दैट दिस इमरजेंसी वाज अ पार्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, यानी इसको न्यायिक पुनरावलोकन
जुडिशियल रिव्यू के अंडर रखा गया, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी इस एमरजेंसी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बाय दी जुडिशियल। यानी इस एमरजेंसी के इम्प्लीमेंटेशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी होगी। ओके, सो इन दिस वे दीज आर द मेजर प्रोविजंस इंक्लूडेड इन द Article 352 of the Indian Constitution, और we can say that for the implementation of national emergency, प्रेसिडेंट को इन सारी बातों को अपने माइंड में लेकर चलना होगा कि नेशनल इमरजेंसी जो है वो वॉर, एक्सटर्नल इन्वेजन और आर्म्ड रिवोल्ट के नाम पे ही इम्प्लीमेंट हो सकती है। ये सिर्फ इंटरनल रिवोल्ट के नाम पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट को कैबिनेट का रिटन कंसेंट लेना ज़रूरी होता है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वो ऐसा नहीं कर सकते। अलॉन्ग विद दैट इसके इम्प्लीमेंटेशन की 1 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट का कंसेंट लेना ज़रूरी है और इसके लिए 2/3 मेजोरिटी या टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स में की मेजोरिटी से मोशन पास करना जरूरी है सेपरेटली फ्रॉम बोथ ऑफ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। ओके, और लास्ट पॉइंट कि इस एमरजेंसी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसको हटाने के लिए लोकसभा सिंपल मेजोरिटी से मोशन पास करके इसको हटा सकती है। इज दैट क्लियर गाइज? नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट टाइप ऑफ एमरजेंसी विच इज़ नोन एज द स्टेट एमरजेंसी। ओके, यानी राज्य आपातकाल विच इज़ ऑल्सो इम्प्लीमेंटेड बाय द President. Guys, actually President can implement state emergency in 2 situations. Okay, first one under Article 356, second one under Article 365. So at first we will discuss about the provisions of state emergency under Article 356. उसके बाद में next discussion 365 के बारे में करेंगे. Okay, the first one is the आर्टिकल 356. सो गाइज अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि प्रेसिडेंट किस सिचुएशन में आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग स्टेट एमरजेंसी इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ऑल दी पावर्स रिलेटेड विद द स्टेट गवर्नमेंट, द legislative powers means the power related with the legislature and along with that the power related with the executive will be used by the president. यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव और स्टेट लेजिस्लेचर की कंप्लीट पावर स्टेट इमरजेंसी इम्प्लीमेंट होने के बाद पार्लियामेंट और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के हाथों में होती है। तो इस इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन सी सिचुएशंस होनी जरूरी होती हैं? ओके, सो गाइस अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356, इफ द प्रेसिडेंट फील्स फेलर ऑफ administrative system or administration in a state, okay, or the president is reported by the governor of that state as the failure of administrative system in that particular state. What I mean to say that is, यदि प्रेसिडेंट को खुद ये फील होता है कि एक पर्टिकुलर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को प्रॉपरली चलाने में कैपेबल नहीं है, या फिर उस स्टेट के गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट को ये रिपोर्ट दी जाती है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है और देयर इज़ अ फेलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन दैट पर्टिकुलर स्टेट, तो ऐसा किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो स्टेट एमरजेंसी इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट खुद भी फेलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फील कर सकते हैं, या फिर गवर्नर के द्वारा भी उनको इन्फॉर्म किया जा सकता है, उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है गवर्नर के द्वारा टू इम्प्लीमेंट एमरजेंसी इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। और इन दिस वे आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द एमरजेंसी द प्रेसिडेंट विल टेक द पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इन हिज हैंड, यानी वो खुद उस स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर वो अपने हाथों में ले लेंगे, यानी उसके बाद उस स्टेट से रिलेटेड
जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं और जो लेजिस्लेटिव से रिलेटेड जो पावर हैं, यानी जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो पावर है वो पूरी तरह से पार्लियामेंट के और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के हाथों में होंगी. Okay, so this is the situation in which state emergency can be implemented by the president under article 356, यानी राज्य आपातकाल से रिलेटेड आर्टिकल 356 होता है. ओके, अब इसमें जो मुख्य जो कंडीशंस हैं, जो मैन कंडीशंस है विच द प्रेसिडेंट शुड कीप इन हिज माइंड, एंड दैट इज आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एमरजेंसी द प्रेसिडेंट हैव टू टेक द consent of the parliament. He have to take the consent of the parliament, or we can say that both the houses of parliament, they will pass a motion with its simple majority. Okay, तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस यदि सिंपल मेजोरिटी से मोशन पास करते हैं तो पार्लियामेंट के द्वारा इस बिल को एक्सेप्टेबल माना जाता है. एंड आफ्टर दैट स्टेट एमरजेंसी जो है वो एक स्टेट में 6 मंथ तक इम्प्लीमेंट की जा सकती है. ओके, और यदि पार्लियामेंट कंसेंट नहीं देता है तो विद इन 2 मंथ इट विल मीट टू एन एंड. ओके, यानी इसके इम्प्लीमेंटेशन के विद इन 1 मंथ प्रेसिडेंट को कंसेंट लेना पड़ता है पार्लियामेंट का, अदरवाइज आफ्टर 2 मंथ्स दिस एमरजेंसी विल मीट टू एन एंड. ओके, और पार्लियामेंट में मोशन पास करने के बाद इसको एक बार में 6 मंथ्स के लिए इंक्रीज किया जा सकता है. बट इसमें लास्ट कंडीशन ये भी होती है दैट दिस काइंड ऑफ एमरजेंसी कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फॉर मोर देन 3 years इन अ पर्टिकुलर स्टेट. यानी एक स्टेट में पार्लियामेंट ऐसा 3 years से ज़्यादा नहीं कर सकते. यानी एक बार एमरजेंसी इम्प्लीमेंट होने के बाद 6 मंथ तक उसको इंक्रीज़ किया जा सकता है, और पार्लियामेंट चाहे तो 6 मंथ के बाद फिर से मोशन पास करके इसको अगले 6 मंथ तक इम्प्लीमेंट कर सकती है. लेकिन ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा 3 years के लिए किया जा सकता है. यानी 6 मंथ ऐसे करते हुए पार्लियामेंट इसको 3 years तक इंक्रीज़ कर सकती है. आफ्टर दैट इट इज़ कंपल्सरी फॉर दी प्रेसिडेंट और दी सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट इलेक्शन. यानी पार्लियामेंट के लिए उस स्टेट में इलेक्शन करवाना कंपल्सरी होता है एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 356 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इज दैट क्लियर? ओके, अब जो हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था, आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग भी स्टेट एमरजेंसी इंप्लीमेंट की जा सकती है. सो गाइज, इसमें सिंपल सा प्रोविजन है दैट if the state government is not cooperating with the central government, or we can say that if the state government is not following the rules formed by the central government, यानी यदि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गया या फिर पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉज को मानती नहीं है, उनको मानने से मना करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेट नहीं करती है, देन इन सच अ सिचुएशन इट इज़ कंसिडर्ड एज द फेलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम in that particular state, and in this way state emergency can be implemented by the president on the basis of the provisions of article 365 of the Indian Constitution. ओके, तो ये बहुत ही सिंपल सा है. इसमें 356 है, अब ये 6 पहले ले आओ, 5 आगे ले लो, 365. ओके, तो ये 2 अलग अलग आर्टिकल्स हैं जिनके बेसिस पे स्टेट एमरजेंसी इम्प्लीमेंट की जा सकती है. इज दैट क्लियर? नाउ एज द नेक्स्ट, द last type of emergency, which is known as the financial emergency. Okay, so guys, last type जो है emergency का वो financial emergency है. Okay, now the point is which are the major provisions of financial emergency. सो गाइस, सबसे पहले ये आप अपने माइंड में क्लियर कर लें कि फाइनेंशियल एमरजेंसी जो है उसके इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 360 में मेंशन्ड हैं. ओके, सो गाइस, फाइनेंशियल एमरजेंसी किस सिचुएशन में इम्प्लीमेंट होती है? तो इसका सिंपल सा आंसर है दैट इफ़ द प्रेसिडेंट फील्स दैट द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द कंट्री is not good, which can harm the goodwill of the country.
or the financial condition of a particular region of the country is not good, which can harm the goodwill of the country on international level, then in such a situation president can implement financial emergency. तो आर्टिकल 360 ये क्लियरली मेंशन करता है कि यदि प्रेसिडेंट को ऐसा फील होता है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में या फिर पूरे देश में ही इकोनॉमिक कंडीशन इतनी ख़राब है कि इसकी वजह से हमारी जो गुडविल है, हमारी कंट्री की जो रेस्पेक्ट है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, उसको नुकसान हो सकता है, देन प्रेसिडेंट कैन इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 360। तो ऐसी कंडीशन में प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? सो गाइस, if we talk about these different kind of emergency, then the state emergency was first of all implemented in Punjab। सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी का इम्प्लीमेंटेशन पंजाब से हुआ था। 1952 में सबसे पहले पंजाब में इमरजेंसी इम्प्लीमेंट हुई थी, स्टेट इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक एक बार भी हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, यानी कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करने लायक सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई है। सो दीज आर द 3 मेजर इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, यानी ये अलग से प्रोविजंस बनाए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जिनको प्रेसिडेंट इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं, जिनको जनरली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, जिनका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 352, आर्टिकल 360 और 356 में मिलता है। स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड 2 मेजर आर्टिकल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, विच आर आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 365। तो सिंपल सा पॉइंट है 356 और यहाँ पे आपको 3 तो कॉमन रखें, 5 को आगे ले जाएं, 6 को पहले ले आएं। 365, 356, 365। ओके, ये दोनों ही आर्टिकल्स स्टेट इमरजेंसी से रिलेटेड होते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट फेलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फील करता है और यहाँ पे प्रेसिडेंट इमरजेंसी तब इम्प्लीमेंट करता है व्हेन द स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स लॉज फॉर्म्ड बाय द पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के रूल्स को मानने से यदि स्टेट मना करता है तो, जैसे कि CAA का जो बिल है उसमें बहुत से स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उन्होंने मोशन पास किया कि वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी, लेकिन गाइस स्टेट गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए किसी बिल को इम्प्लीमेंट नहीं करें। यदि कोई स्टेट ऐसा करता है तो आर्टिकल 365 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट उस स्टेट में स्टेट इमरजेंसी इम्प्लीमेंट करके वहाँ की गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद उस स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर है, बाकी जो मिनिस्टर्स हैं, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है और वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव है, वो सारे ही न्यूलीफाइड हो जाते हैं, उनके पास में कोई पावर नहीं बचती। उस स्टेट की पूरी पावर प्रेसिडेंट के हाथों में होती है, जिनको एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो यूज़ करती है। इज़ दैट क्लियर गाइस? So I hope you will like this video, and this video will help you a lot to increase your knowledge. If there will be any doubt in your mind while watching this video, you can write me in the comment section. I will definitely help you to resolve all your doubts. About the remaining things, we'll discuss in the next video. So guys, thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.